Good afternoon, my dear friends. Welcome to Self Study for UPSC. This is a channel which has been developed by the experienced people and the people who really want that you people can do good in the upcoming UPSC examination. We always lack in proper guidance. We are also lacking in the overburden in the quantity of the material, commercialization, as well as we are wasting the time. Sometimes we are not doing the things at all, and sometimes we are doing over some of the things, which can result in the poor performance in the examination. Therefore, we are now providing this a small lecture series which is very easy to learn, which is very easy to understand, even it is very easy for revision. So in the last lecture we learned about endogenetic forces. Endogenetic forces में हमने पढ़ा the forces which resulting into formation of landforms. तो हमने उसके अंदर पढ़ा the forces which resulting into formation of landforms is known as endogenetic forces. तो endogenetic forces से हमने पढ़ा the basic formation of landforms, intrusive and extrusive. रिवाइज कर सकते हैं. Now this intrusive and extrusive landforms were further resulting into degradation. This degradation of the forces was the result of sun. तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एंडोजेनेटिक एक्सोजेनेटिक. सेकेंड लेक्चर में इसके हमने डिस्कस किया था लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद एंडोजेनेटिक. नाउ वी कैन डिस्कस द ओवरऑल लैंडफॉर्म रिजल्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्सेस. तो वन थिंग इज क्लियर दैट ओवर द अर्थ सन इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी. वेयर अर्थ इज गाइडिंग बाय द सन दैट एरिया इज रिसीविंग द लो प्रेशर. क्योंकि ध्यान से समझना, क्योंकि बिकॉज ऑफ सन यहाँ की एयर एक्सपेंड हो जाएगी. When this air has been expanded, it become light. ये लाइट होते ही साथ एयर ऊपर उड़ने लग जाएगी. When this air is moving up, the region is having low pressure. और सन से अवे this region is having high pressure because यहाँ ठंडक है. Air become dense and it starts suppressing. It is known as high pressure. That's why over the earth low pressure is there. Opposite to low pressure is high pressure, and horizontally air is moving from high pressure to low pressure. So when air is moving from high pressure to low pressure, it resulting into degradation of landform. So sun energy is responsible regarding the movement of air, movement of oceanic currents which are moving from low pressure to high pressure. तो oceanic current move करती है low pressure to high pressure और air move करती है high pressure to low pressure. If you further want to enhance your knowledge, you can subscribe to online course of Aspire. You can subscribe the online course of Aspire regarding geography and mapping. This is a highly recommended batches of Aspire. The cost is very less, just 2500 rupees. If you want, you can make your fundamental very strong, especially those people who are working for 2020 or 2021, those who are the college students और वो अपना UPSC में बेस बनाना चाहते हैं. These people, please do at least one course of Aspire which is very cost effective and very good for your examination by the name of मैपिंग मॉड्यूल एंड ज्योग्राफी मॉड्यूल. आप करेंगे एंड देन यू विल रिमेंबर एस्पायर ऑलवेज. अब ये डेनोटेशन होता कैसे, अब ध्यान से समझेगा फिर हम इसको अच्छे से समझाएंगे. इनिशियली सपोज दिस इज द माउंटेन, है ना, ध्यान से समझिएगा. बचपन में हमने रस्सी तोड़ी थी, है ना. इफ यू वांट टू ब्रेक द रोप, हम उसको पहले ढीला करते हैं फिर खींचते हैं, फिर ढीला करते हैं फिर खींचते हैं. आफ्टर सम टाइम वो स्टेज आ जाती है कि रस्सी अपने आप टूट जाती है बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस. इन द सेम मैनर द अर्थ लैंडफॉर्म आल्सो स्टार्ट्स डिग्रेडिंग. तो अर्थ का लैंडफॉर्म भी इसी मैनर में अपने आप को डिग्रेड करता है. ध्यान से समझिएगा. दिस इज अ माउंटेन विच हैज बीन द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स. दिस इज अ माउंटेन विच हैज बीन द रिजल्ट ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स. हर बच्चा डायग्राम पर कंसंट्रेट करे. अब ध्यान से समझेगा सारा कलाकारी डायग्राम का, इसलिए अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे. सन आया दिन में, यस और नो. जैसे दिन में सन आया, इट रिजल्टिंग इनटू इंटेंस अमाउंट ऑफ हीट. ये माउंटेन का परत स्वेल कर गया, फूल गया, स्वेल. रात हुई, चंदा मामा आ गए. तो मून इज अ सिंबल ऑफ नाइट. द पर्टिकुलर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म फर्दर स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. तो दिस इज अ प्रोसेस कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंडिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग, एक्सपेंडिंग. तो लगातार माउंटेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है. तो माउंटेन बार बार क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड. तो ये जो माउंटेन था इसकी आउटर कवर क्या हो गई, उतर गई. ध्यान से समझना. दिस माउंटेन आउटर सरफेस इज पील्ड ऑफ लाइक अनियन.
अनियन की तरह आउटर सरफेस क्या हो गई, उतर गई। दिस प्रोसेस इन ज्योग्राफी इज नोन एज एक्सफॉयलेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, एक्सफॉयलेशन। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सफॉयलेशन। एक्सफॉयलेशन की वजह से ये आउटर सरफेस क्या हो गई, उतर गई। आउटर सरफेस जब उतरी, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोटे मोटे डेब्रिज नीचे जमा हो गए। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेदर्ड मटेरियल। तो वेदरिंग का मतलब क्या हुआ, वेदरिंग का मतलब हुआ, डेफिनेशन याद कर लो, वेदरिंग मीन्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मटेरियल और द रॉक इज नोन एज वेदरिंग। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रॉक into small debris is known as weathering। तो वेदरिंग की वजह से बड़े बड़े बोल्डर बनते हैं। इसलिए ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जाता है, जब स्टार्टिंग में बिग होते हैं इसको बोलते हैं बोल्डर, इससे फिर छोटे बनते हैं इरोजन की वजह से, इसके बाद इरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो प्रोडक्ट है वेदरिंग का, ठीक है। इसके बाद जो भी प्रोडक्ट बताएंगे दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ इरोजन। बोल्डर से बनता है कोबल, कोबल के फिर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम भोले बाबा की तरह अपने घरों में रखते हैं, which are available on the floor of the rivers, it is known as pebbles। pebbles further टूटते हैं, मोटा मोटा पार्टिकल बनता है sand, फिर और छोटा हो जाता है माइनर silt, फिर और छोटा हो जाता है clay, और सबसे आखिरी में चिपचिपा पदार्थ mud। मैं फिर से बोलता हूँ, इनिशियल बोल्डर हैज बीन द रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एक्सफॉयलेशन। तो बड़ा बड़ा जो पत्थर टूट के नीचे गिरता है, वेदर मटेरियल नोन एज बोल्डर। अब इसके बाद इरोजन काम करता है, the particular type of boulder resulting into cobble, cobel, cobble, then pebble, 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 sand, silt, clay and mud। तो these are some अगर क्वेश्चन जिसमें वो आपसे अरेंज करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द टेक्सचर। सबसे पहले बोल्डर, देन कोबल, देन पेबल, देन सैंड, देन सिल्ट, देन क्ले, देन मड। तो आपको वेदरिंग के बारे में समझ में आ गया। इनिशियली टीयरिंग डाउन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग आर बिकॉज ऑफ फिजिकल, जो अभी हमने नीचे माउंटेन में पढ़ा, एक्सफॉयलेशन इट इज अ फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग डेजर्ट में होती है, फिजिकल वेदरिंग ट्रॉपिकल एरियाज में होती है, फिजिकल वेदरिंग परमाफ्रॉस्ट रीजन में होती है। इससे ज्यादा जानना है प्लीज टेक अवर कोर्स एंड लर्न इन एलेबोरेटेड मैनर। केमिकल वेदरिंग हमेशा वहां होगी जहां मॉइस्चर होगा, दैट मीन्स वाटर एरिया, ट्रॉपिकल एरिया। एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग बिकॉज ऑफ ट्री लगाने की वजह से की रूट्स, बिकॉज ऑफ एनिमल जो बोरो खोजते हैं, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल वेदरिंग। देन वेदरिंग रिजल्टिंग इनटू इरोजन। Now erosion are resulting because of the fourth factor abrasion। abrasion का मतलब क्या होता है, देखो ये माउंटेन है, ध्यान से समझते जाना सब बच्चे, ठीक है। और अगर आपको ये लेक्चर बहुत प्यारा लग रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर लिखें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। हम लोगों के पास एनर्जी है, पढ़ाई है, ताकत है, लेकिन पैसा नहीं है। और हम लोग और लोगों की तरह जो प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, हम मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च कर सकते और हमें शर्म नहीं आ रही है बोलते हुए। हमें बस आपका सहयोग चाहिए। अगर आपको वाकई में ही लग रहा हो ये लेक्चर अच्छा है, शेयर कीजिए, नीडी बच्चों के साथ ज्वाइन कीजिए और बोलिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए सब्सक्राइब करना। किसी को पैसे देना जरूरी नहीं होता है, लेक्चर अच्छे से याद करना जरूरी होता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड एब्रेशन। तो सब लोग हाथ लो और हाथ को घिसो, घिसने को एब्रेशन बोलते हैं। तो नाउ सी, डेजर्ट के अंदर हवा आई, एयर विद सैंड, एंड देन दे आर अपग्रेडिंग दिस सरफेस। तो सैंड इज कमिंग एंड दे आर अपग्रेडिंग दिस सरफेस। आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ दिस एब्रेशन द सेम फीचर ए रिजल्टिंग इनटू दिस टाइप ऑफ रॉक। अगर आपने देखा हो तमिलनाडु टू राजस्थान, इट इज नोन एज इंसलबर्ग और मशरूम रॉक, है ना। नीचे का कट हो गया और ये ऊपर का गोलाकार बचा, इसे बोलते हैं मशरूम रॉक और इंसलबर्ग। तो एब्रेशन इज मोर प्रोमिनेंट इन डेजर्ट एंड रिवर एंड ओशन एरिया, बट मेनली इन डेजर्ट। एट्रीशन, मुट्ठी लो, आपस में मारो एक दूसरे को, ठक ठक ठक। That means the two big boulder when collide with each other resulting into smaller one, when smaller one collide with each other resulting into further smaller one। तो this is cobble, this is pebble, this is sand, silt और clay। तो this is attrition। ये mainly किस में होता है, रिवर में और ओशियंस में, कोस्ट पर। तो attrition means that process of erosion जब दो चीजें आपस में टकराती हैं, when the two particles are resulting into that is a smaller one, boulder, cobble, pebble, है ना, बोल्डर, कोबल, पेबल, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड मड, ऑल आर द रिजल्ट ऑफ एट्रीशन। क्या मेरी बात समझ गए? तो एट्रीशन, एब्रेशन, देन कोरोजन। कोरोजन मतलब केमिकल। पानी इज कंप्राइजिंग ऑफ H2, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। व्हेन दे आर लिंक्ड विद सम रॉक, इट रिजल्टिंग इनटू ऑक्सीडेशन, इट रिजल्टिंग इनटू केमिकल वेदरिंग, इट रिजल्टिंग इनटू कोरोजन। फर्दर स्मॉल स्मॉल हाइड्रोलिक एक्शन, पानी के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। नाउ दिस इज अ कोस्ट,
ये पानी इसको हिट करता है, रिजल्टिंग इनटू केव। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नोन एज हाइड्रोलिक एक्शन, और हाइड्रोलिक एक्शन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है आपका? हाइड्रोलिक एक्शन इज मोस्ट प्रोमिनेंट ओवर द कोस्टल एरियाज एज वेल एज रिवर। एंड डिफ्लेशन, हवा आई मुड़ गई बिकॉज ऑफ कोरलिस फोर्स, यहाँ होलो बचा। दिस इज ओनली अवेलेबल इन डेजर्ट्स, कहाँ मिलेगी? सिर्फ डेजर्ट्स में। तो डेजर्ट्स के अंदर एक प्रोसेस मिलता है डिफ्लेशन। मैं रिवाइज कराता हूँ फिर से आपको। एब्रेशन मीन्स घिसना, डेजर्ट प्रोमिनेंट। एट्रिशन मतलब आपस में टकराना, रिवर एंड कोस्टल रीजन। कोरेजन मतलब पानी के साथ केमिकल कंपोजिशन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिक एक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर एंड डिफ्लेशन। ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज द इरोजन। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन विद हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड आइस, जहां पे डिपोजिट होते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। एंड लास्ट में आपका बचता है डिपोजिशन। ऑल दिस फैक्टर रिजल्टिंग इनटू लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। इसके बाद वी आर डूइंग द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इन अ वेरी गुड मैनर। All the landform development we are doing from GC Leong. For next lecture, please, that is be ready with your GC Leong. Now again some announcement. Aspire has been coming with test series for mains examination. Aspire is one of the best institution regarding the test series. So many people from Nandini to Kiran to Aditya Vikram Hirani to Abhinav Chokse, Reshma, Saroti Rai, all people were the part of writing skill development program. आज तक ये प्रोग्राम पीटी के बाद होता था, बट बिकॉज ऑफ दिस गैप वी स्टार्टेड नाउ दैट यू पीपल कैन डू सम प्रैक्टिस। हमारे प्रोग्राम के कुछ अच्छे पार्ट हैं, 12 पेपर है जीएस के, 72 आवर्स में आपकी कॉपी चेक होके मिलेगी, एंड देन लाइव सेशन ऑन जूम और द फोन कॉल दैट यू पीपल कैन डू, एंड यू कैन गेट द असेसमेंट एंड द फीडबैक ऑफ योर कॉपी बाय मी, द डायरेक्टर ऑफ दिस Aspire IAS. In the same manner, we are providing 8 test paper within the that is the optional. 3 options are available: commerce, political science, and geography. These 3 options right now available in Aspire with a good faculty. Geography is conducted by me. Every paper is 500 rupees, but if you enroll the whole test series, the cost is 6,000. But GS whole test series is 5,000, and here it is just 3,700 rupees, not 4,000 rupees. So if you really want, please do the practice with us. We can give you the weekly paper, and the validity of this session is till December, ताकि आप इसे दिसंबर में, जनवरी में भी यूज कर सके. Thank you so much for listening me. Thank you so much for attending me. Good day, good night.